Everyone. I hope all of you are in the best of health and spirits. So, this is going to be our first online session since some of you were having plans to go home and enjoy it with your loved ones and you wanted to have some extended holidays. I hope you'll have a wonderful Eid at home. Hear me out. We'll have an online session today and we'll have an online session in the next week. Same timings, standard class timings from 12:30 to 2:40, I guess, 2:50. In today's session, we are going to talk about employee misbehavior and how we can manage misbehavior in the organization. It is one of the topics which we have to cover before the midterm. And in the next class, as per our course outline, we were expected to have oral presentations about the course report. But since that would not be possible given that we'll be having an online session, what we'll do is we'll have a presentation, but not the verbal one. We'll have a presentation in written form, and those forms will be available for your eyes today midnight at 12 a.m. and the deadline to submit that work will be Tuesday by 3 p.m. inshallah. All right, so let's begin our today's session. Before we begin, I want to talk about two things. First, I want to talk about the course structure, and second, I want to talk about a topic which we missed. There was a quiz regarding a Foxconn organization, and you guys have given that quiz. I have marked that quiz, entered your marks. Unfortunately, I will not be able to hand you over today, but inshallah, the time we will meet in person, I will hand you over those quizzes. That quiz was about an organization which is very renowned around the world and is a major supplier of the electrical components, so big that it supplies the electrical components to as big as Apple computers and Samsung. And the case study was the working conditions at the Foxconn factories, especially in China mainland. I want to tell you something very interesting regarding the suicides. My dear students, आप जिस कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं ना, which is the Western culture, the way we want to look ourselves like, and the way we dress, and the way we talk, and the way we walk, and the way we present our ideals, हमने जिनको अपना ideals बनाया हुआ है, what they are doing. I want to tell you that in Japan, the first world country, and in few states in United States of America, again a first world country, suicide is legal, and they call it doctor assisted suicide. Doctor assisted suicide is that, okay, you want to end your life, that's not a problem. If you want to end your life, the simple thing is that you go to the doctor and you tell him that, dear doctor, I want to end my life. Doctor will give you a medicine, a pill, and he will ask you to sign a form which is a suicide consent form, which says कि जनाब I want to die, right? I'm not happy with my life or whatsoever. And he will give you a pill and he will ask you to go and sit on the bed over there. And you will eat that pill, you will lay down on the bed, and hurrah, you're gone. As simple as that. They adopted this technique because suicides were very common. And they were tired of the people hanging themselves in their apartments and jumping off the bridges on the main roads, causing the traffic to jam or causing havoc to the people in the apartment buildings. So they said, okay, if you think that there is no other way and you want to end your life, so there is a very simple way. You can end your life by just going to the doctor, signing a simple consent form, eating a pill, and you are gone. The objective of telling you this is
that दोस्तों जिनके पीछे हम सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनके पीछे सुकून नहीं है, उस लाइफस्टाइल में सुकून नहीं है. दे आर sick of that lifestyle, and that lifestyle has stormed in their lives so deeply and so badly that they feel that there is no other way just other than to end their own lives. So yeah, you know what, in this Ramadan, try to connect with the Creator. And you know, this is one of the biggest blessings that we have a Creator. Creator is for them as well, but they are mostly atheists, so they feel that there is no God and everything, you know, is happening on its own. Anyway, the course structure which we followed was, we started with simple introduction. After introduction, we talked about organizational culture and international culture. We talk about individual differences. What else we talk about? We talk about perceptions, we talk about attributes, perceptions and attributions. We talked about impression management. Then we talked about the motivation. We talk about employee evaluation and appraisal, right? Which included job design in the last session. And we came on the point where today we are going to talk about managing misbehaviors. जहाँ ज़्यादा लोग काम करेंगे वहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी. ये जो लड़ाइयाँ हैं ये बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं. मिसबिहेवियर्स कैन रेंज फ्रॉम एज लिटिल एज passing a comment on someone to as big as shooting someone. It has a very wide range, misbehaviors. तो ये जो disagreements हैं, these disagreements can cause problems for the organization. What do you feel? Misbehaviors are good for the organization or bad for the organization? What is the objective of the organization, मेरे दोस्तों? Objective of the organization is not to resolve the personal problems of the employees. The objective of the organization is to make money. पैसे कमाने हैं भाई, पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं कंपनीज वाले. तो अगर तो ये मिसबिहेवियर्स को मैनेज नहीं करेंगे, इट इज़ गोइंग टू हर्ट द ऑर्गेनाइजेशन बॉटम लाइन विच इज़ द प्रॉफिट्स. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसका मतलब है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज़ कि हम ये अंडरस्टैंड करें सबसे पहली बात कि व्हाट आर द मिसबिहेवियर्स, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दोस्तों, हाउ वी कैन मैनेज देम. एक बात याद रखिएगा कि वंस यू आर अ मैनेजर और एन एग्जीक्यूटिव वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड शेयरिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. So a manager or an executive has always been in active posture. Before I move forward, I want to make a very important announcement. And the announcement is that there is going to be a quiz by the end of this session. ये जब वीडियो ख़त्म होगी इसके फ़ौरन बाद आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा. That link will be available for 15 minutes. वो 15 मिनट के बाद लिंक इनएक्टिव हो जाएगा. आप सबमिट करने की कोशिश करेंगे, सबमिट नहीं होगा तो एक दूसरे से कॉपी करने के बजाय उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा. क्विज़ मुश्किल नहीं होगा, इट वुड बी वेरी इजी. इसमें ट्रिक सिर्फ इतना है मेरे दोस्तों कि ये जो जैसे जैसे वीडियो चलती जा रही है ना, टेक नोट्स, प्लीज़ टेक नोट्स. और नोट्स आपने जब ले लिए होंगे, सामने पढ़े होंगे, क्विज़ आपके सामने आएगा तो इट विल बी वेरी इजी, यू नो, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन और राइट द करेक्ट आंसर. Okay, so there will be a quiz by the end of this session. Be prepared about it. अच्छा, मिसबिहेवियर थोड़े से हमने अंडरस्टैंड कर लिए, ठीक हो गया. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए
सवाल अगला ये है, इम्पोर्टेंट क्यों है कि मिसबिहेवियर्स को मैनेज किया जाए। मैं आपको यहाँ पे एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक कंपनी है, आई विश यू गो ऑनलाइन एंड सर्च इट। द नेम ऑफ कंपनी इज़ एनरॉन। एनरॉन इज़ अ $multi-billion कंपनी। ये कंपनी जो थी, एक रात में इसकी शेयर प्राइस फ्रॉम ओवर $150 it went down to few cents. What happened to that? आसान अल्फाज में हुआ ये कि एनरॉन के जो एग्जेक्टिव्स थे वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है ना उनको उनके साथ कोई छेड़ाछाड़ी करते थे। देखो, एक कंपनी का जो शेयर है ना उसकी प्राइस डिपेंड करती है कंपनी की परफॉर्मेंस पे, और कंपनी की परफॉर्मेंस मेरे दोस्तों हम मेजर कर सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की परफॉर्मेंस यूजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक लिमिटेड कंपनीज शाया करती हैं, अवेलेबल करती हैं टू द जनरल पब्लिक यूजिंग देयर एनुअल रिपोर्ट्स। तो अगर तो एनुअल रिपोर्ट्स में कंपनी की पोजीशन बड़ी साउंड है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है ना इट विल गो अप। और अगर गॉड फॉरबिड एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी साउंड नहीं है, इसका अल्टीमेट जो आउटकम है वो ये आएगा कि उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो नीचे आएगी। सही है। अच्छा, मैं आपके साथ ये पहले बता चुका हूँ कि कुछ कंपनी के रेवेन्यूज़ होते हैं जितनी उन्होंने सेल्स की। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी ने सेल की 1,00,000 रुपए की, 100,000 की, और इसी तरह उस सेल पे कुछ कॉस्ट भी आई होंगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हम वो कहते हैं वो 50K की आई हैं। इसका मतलब है जो प्रॉफिट आया ना, दैट प्रॉफिट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। इसको मैं जीपी कहता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज़ 50K। ठीक है। जीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से और भी चीज़ें माइनस होंगी। उस कंपनी को कोई भाई बिल वगैरह भी तो आते हैं ना, उस कंपनी ने कुछ सैलरीज़ वगैरह भी तो देनी है, उस कंपनी ने कुछ टैक्स भी तो पे करने हैं। मैं यूटिलिटीज़ कहता हूँ जी, कोई 5,000 की यूटिलिटीज़ आ गई, सैलरी को 10,000 की हमने दे दी, टैक्सेस कोई 5,000 की हमने दे दी। अब जो प्रॉफिट आ रहा है ना, ये प्रॉफिट आएगा 50 में से 20 क्या, 30,000 हमारे पास प्रॉफिट आ गया। एक कंपनी अगर इस प्रॉफिट को ज़्यादा करना चाहती है तो उसके पास दो तरीके हैं। 1, वो सेल्स को ज़्यादा बता दे, 2, वो कॉस्ट्स को कम बता दे। ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट, ये कॉस्ट्स हैं, और ये भी कॉस्ट है, ये बाकी सेल्स हैं, सेल्स और प्रॉफिट। ठीक है। तो कंपनी यहाँ तो कॉस्ट को कम कर दे, ये वाली कॉस्ट को, ये वाली कॉस्ट को, या प्रॉफिट को ज़्यादा कर दे। एनरॉन कंपनी ने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उनको मैनिपुलेट किया हुआ था, जिसके ज़रिए इन्वेस्टर को ये बताती थी कि कंपनी बड़ी साउंड है, बट कंपनी वाज नॉट इन वेरी गुड फाइनेंशियल पोजीशन। और जब कंपनी ये बताती थी कि बड़ी साउंड है, तो उसके जो सीईओज़ थे ना, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो क्या करते थे, वो कंपनी में उनमें से एक बंदा जिसका नाम है स्किलिंग, आई विश यू गो ऑनलाइन एंड सर्च हिम, उसने सुसाइड की थी, स्किलिंग ने भी। तो स्किलिंग जो था उसने क्या किया था, उसने अपने जो हैं वो उसे कहते हैं इंसेंटिव्स, बोर्ड के जो इंसेंटिव्स होते हैं, सीईओ इंसेंटिव्स, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, अपनी सैलरीज़ को, ये वो। तो जब शेयर की प्राइस बढ़ी, दे परचेज द शेयर्स एंड बाय द टाइम दे रियलाइज दैट कंपनी इज़ गोइंग टू प्लमेट, दे सेल ऑफ द शेयर्स एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी। एनरॉन को एक टर्म यूज़ होती है, उसको कहते हैं विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की अनएथिकल प्रैक्टिसेस जब कोई इंटरनल एम्प्लॉई रिपोर्ट कर दे टू द अथॉरिटीज़, इसको विसल ब्लोइंग कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वर्ड जो मैंने यूज़ किया, विसल ब्लोइंग।
तो एम्प्लॉई बता देता है कि भाई ये कंपनी ठीक नहीं है। तो अच्छा, अब जब ये इनरॉन ने किया, इसके रिज़ल्ट्स क्या आए? इसका रिज़ल्ट ये आया कि कंपनी एम्प्लॉइज़ की जॉब्स गई, एम्प्लॉइज़ की पेंशन्स गई, एग्जेक्टिव्स को जेल हो गई, इम्प्रिजनमेंट मिली, कम्युनिटी लॉस्ट ट्रस्ट ऑन द बिग guns, on the big organizations, और society had to bear legal expenses. This was the result. इसका मतलब है कि मिसबिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना और टाइम से करेक्ट करना मेरे दोस्तों एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जॉब. अच्छा, अब सवाल ये है कि these are few examples of the misbehaviors. These are few examples of the misbehaviors include blackmail, bribery, espionage, incivility. इनमें से कुछ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. राइट? These are few examples of the misbehaviors. इसमें इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ये सीमेंस की हैं, बहुत प्रोमिनेंट नाम है. जॉनसन एंड जॉनसन की है. अब ये देखें, जॉनसन एंड जॉनसन पे ये इल्ज़ाम लगा, एंड जॉनसन एक्सेप्टेड दैट एंड पेड $70 million विद 6 zeros टू द अथॉरिटीज़. कि उसने कहा जी कि ये इन्होंने ब्राइब्स दी हैं डॉक्टर्स को कि डॉक्टर्स जॉनसन एंड जॉनसन की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करें. जैसे यू वेंट टू अ डॉक्टर एंड यू सी different medical representatives waiting outside the doctor's office. Why they are waiting actually? They are waiting to meet the doctor ताकि उसको डॉक्टर को ना वो कन्विंस कर सकें कि भाई आपने जो मेडिसिन लिख के देनी है पेशेंट को, बराए मेहरबानी मेरी मेडिसिन हमारी कंपनी के लिख के दें. तो जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ग्रीस, पोलैंड, रोमानिया में दे वर गिविंग ब्राइब्स टू द डॉक्टर्स कि भाई प्लीज़ जॉनसन एंड जॉनसन की मेडिसिन लिख के दो, विच वॉज अनएथिकल. इसका रिज़ल्ट ये आया कि जनाब जॉनसन एंड जॉनसन एंडेड अप पेइंग $70 million. आई हैव शेयर्ड दिस रीडिंग विद यू. आई होप आपकी नज़रों से गुजरी होगी. इफ़ नॉट प्लीज़ रीड इट अप. इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पॉन्जी स्कीम के नाम से. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल. ये वाली ये बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़. ये जो पॉन्जी स्कीम ये है, इसमें ये पॉन्जी स्कीम समझ लें डबल छाप. यू हैव हियर्ड ऑफ द केस इन वज़ीराबाद. देयर वाज अ person who was saying कि आप मुझे पैसे दें एंड 15 days, आफ्टर 15 days आई विल डबल दैट मनी. तो वो लोग, लालच है ना हर इंसान के अंदर. वी हैव दिस इंस्टिल्ड ग्रीड इन अस, जिसकी बेस के ऊपर वो लोगों ने पैसा दिया. चलते 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 इट बिकेम अ बबल, इट बर्स्टेड एंड उसका नाम डबल शाह था. और ये एक पुराना आइडिया था बेसिकली, दैट वाज टेकन फ्रॉम बर्नार्ड मैडॉफ. और ये कितना बड़ा इसने फ्रॉड किया, दैट वाज $65 billion. इट्स अ लॉट ऑफ मनी. पाकिस्तान के ख़जाने में 20 बिलियन नहीं है दोस्तों, और $65 billion बैक इन 2009. इट्स अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है जी. और इसको देखें, 150 साल जेल की सज़ा हुई थी. 70 साल की उम्र में पता चला कि इसने ये स्कीम चलाई है. मोर अबाउट दिस स्कीम यू कैन लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, और आपको पता चलेगा कि ये चलती कैसे है. इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी सिंपल इकोनॉमिक्स जो आपको समझ में आ जाएगी. जब ये मिसबिहेवियर्स होंगे, मिसबिहेवियर्स हमने समझ लिए, जब ये मिसबिहेवियर्स होंगे तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन मिसबिहेवियर्स को मैनेज करें. अच्छा, अब ये वाइट वाला मैंने ख़त्म करना है. एक सेकंड मुझे दीजिएगा. ओके, ड्रॉ टूल ख़त्म. अच्छा, इसको कहेंगे जी हमने मैनेजिंग मिसबिहेवियर्स करना है. अब इम्पोर्टेंट ये हुआ कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मैनेजर्स टू कंट्रोल द मिसबिहेवियर्स. अच्छा, 3 स्टेजेस की होती हैं मिसबिहेवियर. 3 स्टेजेस पे.
एक स्टेज होती है जिसे हम ए स्टेज कहते हैं, एक स्टेज होती है उसे बी कहते हैं, एक को कहते हैं सी। ए स्टेज है एंटीसीडेंट्स, जिसकी वजह से हुआ। बी है जो हो रहा है, इसको मॉडरेटर्स कह लेते हैं, मीडिएटर्स कह लेते हैं। मैं इसको आसान अल्फाज में कहता हूँ बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। ये 3 स्टेजेस हैं। देखें, आप किसी पे गुस्सा होते हैं, उससे लड़ते हैं, उसको धोखा देते हैं, उसकी चीज़ तोड़ते हैं, उसकी चीज़ चोरी करते हैं, यू अब्यूज समवन, यू हरास समवन, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न। वो जो रीज़न है ना, दैट इज़ एक्चुअली बिफोर। उस रीज़न के नतीजे में देयर इज़ गोइंग टू बी एन एक्शन, जिसको हम कहेंगे ये एक्चुअल एक मिसबिहेवियर हुआ है। उस एक्शन के बाद देयर विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको हम आफ्टर कह देते हैं। तो अगर हम मिसबिहेवियर मैनेज करना चाहते हैं तो मोस्ट इफेक्टिव वे इज दैट वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, दैट व्हाट इज कॉजिंग दिस बिहेवियर्स। मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की कि भाई क्यों हो रहा है ये, व्हाई। वो जो रीजंस हैं हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। ए टू, मे बी इट्स अ प्रॉब्लमैटिक एम्प्लॉई, वो एम्प्लॉई कोई थोड़ा सा साइकोपैथ है, he should not be in our organization, so what should we do about him। हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसे एम्प्लॉय को हायर ही ना करें। फिर जब मिसबिहेवियर हो रहा है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग बैक, सिटिंग बैक एंड लुकिंग एट इट, वी कैन स्टॉप इट। हाउ, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। एंड वंस इट इज़ डन एंड यू एज अ बॉस गेट टू नो अबाउट इट कि फ़लाँ बंदे को हरास किया गया है, फ़लाँ चीज़ चोरी की गई है, फ़लाँ काम ऐसे किया गया है, तड़ियाँ लगी हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जब हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आप एज अ मैनेजर कौन से एक्शंस लेते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं ये एग्जांपल आगे जाके आपको देनी थी, लेकिन चलें कॉन्सिक्वेंसेस की इंपॉर्टेंस बताने के लिए फॉर द टाइम बिंग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गिव मी अ सेकंड, लेट मी पुट द लैपटॉप ऑन चार्ज, वेट। ओके, ऑल सेट नाउ। मैं आपसे कह रहा था कि मैं ये एग्जांपल बाद में देना चाहता था, लेकिन सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल राइट हियर। अब थिंक ऑफ अ सिचुएशन, मेरा एक एम्प्लॉई है और जो ये वेडिंग्स का या इवेंट्स का बिज़नेस होता है ना, ये बेसिकली इट्स अ सीजनल बिज़नेस जो सर्दियों में होता है। इट स्टार्ट्स विद द एडवेंट ऑफ रबीउल अव्वल एंड इट एंड्स विद रमज़ान। बाकी थोड़े बहुत इवेंट्स चलते रहते हैं, लेकिन जो सुबह शाम के प्रोग्राम हर रोज़ के वो सीज़न में होते हैं। अच्छा, सीज़न फुल लगा, और जब सीज़न लगा होता है ना मेरे दोस्तों, तो लोग नहीं मिलते, एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं मिलते, बिकॉज एवरी वन इज़ इंगेज्ड समवेयर इन सम ऑर्गेनाइजेशन, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड गुड एम्प्लॉयज़। होता यूँ है कि रात के 12-1 बजे आई स्टार्टेड माई कार एंड आई केम बैक होम, और जो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था ना, उसकी ऑनलाइन एक्सेस थी, वहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरा एक एम्प्लॉई है जो बड़ा अच्छा एम्प्लॉई है, यानी ऐसा एम्प्लॉई है जिसके ऊपर मेरा सीज़न बेस कर रहा है। उसने बॉटल्स होती हैं ना 1.5 लीटर की, उसका एक पैट अपनी मोटरसाइकिल पे आगे रखा, उस पर कपड़ा डाला और लेके निकल गया। अब ये हो चुका है, व्हाट शुड आई डू? शुड आई फायर हिम? शुड आई टेल हिम व्हाट ही हैज़ डन? अगर मैं उसे फायर कर दूं तो मेरे बिजनेस का नुकसान होना है। मतलब सीज़न में बैठे हैं ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं सीज़न में, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड गुड पीपल। तो अच्छा, एक बात, दूसरी बात, मैं अगर उसके साथ डिस्कस कर लूँ, ही इज़ गोइंग टू गेट डीमोटिवेटेड, ही विल नो कि मुझे निकाल दिया जाएगा, ये सिर्फ यानी कुछ अरसे के लिए जितना सीज़न है इनको मेरी ज़रूरत है, दे आर वर्किंग, तो
उसके बाद तो वो मोटिवेटेड होके काम नहीं करेगा. व्हाट शुड आई डू एज अ मैनेजर? अब ये एक डायलेमा है जिसमें मैं फंस गया हूँ. अब देख रहे हैं, अब हो गया है, काम हो गया है, उसके बाद क्या करना है एज अ मैनेजर. अच्छा, मैंने क्या किया ये मैं आगे चल के आपको कहानी मुकम्मल सुनाऊंगा. अभी के लिए आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग मिसबिहेवियर्स आफ्टर एन इवेंट हैज़ ऑकर्ड. ऑलराइट, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? मेरा ख्याल है मुश्किल बात नहीं, इट्स वेरी इजी. अब हम एक एक करके मिसबिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन से मिसबिहेवियर्स होते हैं. लेट्स लिस्ट देम डाउन. कॉमन मिसबिहेवियर्स एट द वर्क प्लेस. एक होता है, उसको हम कहते हैं जनाब हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट. और उसके बाद जनाब होता है एक सेकंड दीजिएगा, एग्रेशन एंड वायलेंस. bullying is very common. Incivility, when employees behave in incivil ways. Fraud, and what else, वो एक cyber slacking. I think these are few of the common misbehaviors at the workplace. Yeah, there is very important misbehavior: theft, sabotage. These are few of the misbehaviors which are very common at workplace, right? So there are 8 of them. One by one we are going to cover these misbehaviors, starting with the harassment. ओके, अमेरिका में एक सर्वे होता है. उस सर्वे में पता ये चलता है कि 70% फीमेल्स रिपोर्टेड हरासमेंट, that we are not safe at workplace, we are being harassed. Harassment होती क्या है? By definition it means that those gestures or moves which are uncomfortable to us are called harassment. These are unwelcoming advances. Right? Or asking for inappropriate favors. Right? This is a simple definition of harassment. Harassment किसी वजह से होती है, and it gets most dangerous when it is linked with the work outcomes. आप जॉब लेना चाहते हैं, आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, and somebody uses you for these things. Maybe that is the very very dangerous side of the workplace harassment. It also includes flirting, joking, inappropriate, and bantering. It's very common. These are few of the examples of which leads to the harassment. It is important to understand that mostly harassment comes from the men. And from the psychological point of view, you guys should understand that mostly men who hold male stereotypes that men are superior are the most common harassers, right? And mostly those men who are male stereotypes and they are active harassers, they usually give higher performance ratings to the attractive women. Up think of a workplace
जहाँ पे मुख्तलिफ ख़वातीन काम कर रही हैं, एंड देर इज़ वुमेन who are good looking and there are women who are not so average looking maybe. So those attractive women are getting more performance rating from their bosses, but not the ones who are average looking. But maybe those average looking women are more hard workers, bringing more good better outcomes for the organization. Lekin since they are not getting the uh, right performance ratings, what will end up? They are going to be end up in getting demotivated. They will not work from hard. They will lose OCB, organizational citizenship behavior, at the end of the day. So harassment is a bad thing, right? ये तो एक हो गई harassment की बात. It's very common, unfortunately. हमारी बेटियों को अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे. Second is aggression and violence. Aggression simply means causing harm to others through words or actions. This includes aggressive behaviors. These are examples of the aggressive behaviors. So these are physical and verbal, which I called words are verbal and actions are physical. Okay. So we have here physical and we have here verbal, and both have these types, active and passive. Active means you are pronouncingly doing something, and passive means you are being a kuna type kind of thing. Oh mujhe to nahi pata, acha ye ho gaya. And you are moving the legs of the other people, right? You are pulling the legs, and on their faces you are just trying to be nice. So that is passive. Now you see it includes dirty looks, obscene gestures, sabotage. I'll tell you what it is. Theft, चोरी करना, ये भी एक aggression की type है. Passive में देखें, very interesting. Intentional work slowdown. Oh मैं थक गया यार, मेरे से नहीं होता. Refusing to provide needed resources. Multimedia नहीं available है. Leaving areas when target enters. Preventing target from expressing self. Showing up late for meetings. Delaying work to make target look bad. He is the team leader and you are the team follower, and you are delaying your work. Eventually the leader will be asked that why the work is late, so he will be the one who will lose face, not you. Causing others to delay action. So these are other examples. Active means on your face, passive means nice on your face, but they are pulling your legs, right? I hope it's very simple. You guys can. Insults and sarcasm, it's also very common. Wait. Okay. Unfair performance evaluation. आपको मैंने example दी है. Giving higher performance rating on the basis of looks. Spreading rumors. वो तेनू पता है उन्हें की कर देता है. Look here, whistle blowing. जान पूछ के कोई चीज़ है, यानी वो बता देना, इसको भी whistle blowing कहते हैं. It's active, verbal. Targets behind, उसके ख़िलाफ़ लोगों के बातें करना. Belittling opinions, कि उसको देखो बड़ी बड़ी बातें करता है, उसकी कोई औकात है. This is belittling opinions. And it's a very simple examples. I think you can easily get over them. How to overcome aggression. Okay, no, this is incivility. Next is how to overcome aggression. Let me sort it out. Yes. Eventually, by the end of the day, हम इस अपने सेशन के आखिर में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो बिहेवियर्स होते हैं इनको ओवरकम कैसे किया जाता है. लेकिन वन बाय वन हम ये भी चीज़ें देखते जाते हैं कि जो मुख्तलिफ मिसबिहेवियर्स की कैटेगरीज हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं.
most pronouncedly through SOPs. SOP stands for Standard Operating Procedures, through which we can overcome aggression and violence. You tell the people, if you will do this, we will do that, right? If you will speak loudly with someone, you will end up in maybe losing some, having some cut in the pay. So if you will do this, we will do that. So eventually what we are trying to do is we are trying to regulate the behaviors of the employees, जिसकी वजह से maybe we'll end up in overcoming aggression and violence at the workplace. Next is very common, maybe you guys have also experienced it, इसका नाम है bullying. नाम बिगाड़ना, बातें लगाना, आवाज़ें कसना, everything comes under bullying, because bullying has one objective: humiliation. We want to humiliate the target. We want to create a distress in the target. वो बुरा लगे, उसको नींद ना आए, मैं ऐसी बातें उसे करूं. अच्छा, बुलिंग कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है डांटने की, गालियां निकालने की, ह्यूमिलिएट करने की, डिस्ट्रेस क्रिएट करने की. तो इवन इफ दे आर डूइंग, दे डोंट नो. सो समटाइम्स इट्स अनकॉन्शियस एंड समटाइम्स इट इज डेलिब्रेट. It's conscious. It's done right on time, right on target. And it is also very important to understand that bullying is a repeated behavior. It's not a one-time thing. आपका कोई नाम बिगाड़ेगा एक दफ़ा, you don't know, you don't mind. लेकिन again and again something will come up and it will humiliate you. It will belittle you. और ये बात याद रखिएगा, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बुलिंग आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं तो यू विल एंड अप इन लूजिंग सेल्फ एस्टीम. जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आप कहीं उसको, आप कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू कर देते हैं मेरे बच्चों. सो स्पीक अप. डोंट लेट अदर्स टू बुली यू और योर लव्ड वंस. बुलिंग तब होती है व्हेन देयर एग्जिस्ट एन इम्बैलेंस इन पावर. Your boss is in superior position, he bullies you. There is an employee who is, in better financial position, he is bullying you. There is an employee maybe not so better financial position, but he has good friends, more people on his side, he is bullying you. So there is imbalance in power between the bully and the victim. So there are two parties involved इन बुलिंग प्रोसेस जो हमने याद रखना है. एक विक्टिम होता है जिसको बुली किया जाता है, और एक होता है बुली जो एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द बुलिंग द विक्टिम. It is also important to understand that bullies are generally more aggressive and hostile. Violent behaviors इनमें ज़्यादा होते हैं bullies में. And bullying is so dangerous that if it not addressed right on time, it becomes a common business, normal business. अगर आप bullying को identify नहीं करेंगे तो it is going to get normal. एक शॉप है, वर्कशॉप, वहाँ पे जाते हैं, आप देखते हैं कि उस्ताद जो है ना वो 3500 गालियाँ निकाल रहा है वो अपने सबऑर्डिनेट को. तो आप कहते हैं यार क्या है यार, ये इसके बेचारे को गालियाँ ही निकालता जा रहा है. लेकिन वो जो एम्प्लॉई है ना उसके लिए नॉर्मल है, उसको पता है मेरा उस्ताद मुझे गालियाँ निकाल के ही काम करवाता है. चूँकि बुलिंग को स्टॉप नहीं किया गया, इट गेट्स नॉर्मल. आपका कोई नाम बिगाड़ता है एंड यू डिडंट आइडेंटिफाइड इट, टॉक्ड अबाउट इट, try to stop him or her, तो वो नॉर्मल हो जाएगा. And then your feelings does not matter. Please stand up for this. Bullying is not good. It is unhealthy for you. Okay? Organizations इसको भी SOPs के ज़रिए ओवरकम करने की कोशिश करती हैं बुलिंग को. Moving on, let's talk about incivility. इनसिविलिटी वर्ड निकला है सिविल से, मुआशरती. तो सिविल आपने सुना होगा ना, ऐसे तमाम काम जो
सिविल नहीं है, दीज आर कॉल्ड इनसिविल, इनअप्रोप्रिएट, नॉट इन प्रॉपर मैनर्स, उनको हम इनसिविल कहते हैं. All those behaviors which are considered rude, which are considered uh, discourteous, not courteous, are called incivil behaviors. Give me a second, please. अच्छा, जो एम्प्लॉयज़ इनसिविलिटी में इन्वॉल्व होते हैं ना, इनसिविलिटी का एक रूल आपने याद रखना है. इनसिविलिटी जो होती है इसमें लैक ऑफ रिस्पेक्ट होती है. जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे इनसिविल होंगे, दे लैक रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. दूसरों की इज्जत नहीं होगी उनके जहन में. दे थिंक दे आर द सुपीरियर वंस. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो आपके काम आ सकता है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ OCB, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर. देखिए, जब एक एम्प्लॉय अपने आप को एक फ़र्ज समझेगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो दूसरों की रिस्पेक्ट भी करेगा. इनसिविलिटी ऐसे एम्प्लॉयज़ के अंदर पाई जाती है जिनमें OCB नहीं होता. सो एब्सेंस ऑफ OCB इज इक्वल टू इनसिविलिटी, राइट? दैट इज़ इनसिविलिटी. अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनसिविलिटी की क्या क्या हो सकती हैं. एग्जांपल्स इंक्लूड व्हेन वी इग्नोर समवन, others during the meeting, disrupting others, उनको तंग करना, क्या कर रहा है, छोड़ पड़ा काम करके क्या करना. लाइक यू आर ट्राइंग टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर योर मिड टर्म्स एंड योर फ्रेंड इज ट्राइंग टू से, ओ यार क्या हो गया, इतना पढ़ के तूने क्या करना, दफ़ा कर. with as nice as refusing to say thank you and please. It also includes sorry as well. Some people are very reluctant to say sorry. They think that हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाएगी, हालांकि इज़्ज़त नफ्स कोई भी नहीं होती इस लेवल पे. Now, important question: how we can overcome incivility? Incivility can be overcome through training programs. इसकी एक स्लाइड भी यहाँ पे, ये yes, ways to prevent incivility at work. There should be no tolerance towards incivility, and organizational climate should be properly managed in order to avoid the instances of the incivility. Leaders should work as the role models for the civil behaviors and provide training to the employees regarding the incivility, and there must be a proper mechanism at place to punish those employees who do not adhere to the civil behaviors at the workplace. So these are ways through which organization can prevent the incivil behaviors at work. Right? आगे चलते हैं. Let's talk about fraud. ये अगर नंबर वाइज चलें तो ओके, फ्रॉड इज एट नंबर 5. ओके, मैं आपको यहाँ पे एक कहानी सुनाता हूँ. एक कंपनी विच वाज अ CA चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, इसका नाम था आर्थर एंडरसन. एनरॉन कंपनी की मैंने आपको कहानी सुनाई कि एनरॉन कंपनी वाज इन्वॉल्व्ड इन अ multi-billion-dollar scam where they manipulated their financial statements. उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये बात याद रखिएगा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना,
वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया जाता है बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन. इस केस में, एनरॉन के केस में, आर्थर एंडरसन वाज द कंपनी जो एनरॉन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करती थी, और हर साल उन्होंने कंसील किए फैक्ट्स फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द पीपल अदर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन जिनको फ्रॉड का नहीं पता था. अब आप देखें, जब पुलिस ही चोर बन जाए तो फिर क्या हाल होगा. दिस इज़ व्हाट हैपन इन एनरॉन्स केस. आर्थर एंडरसन, which was audit firm, which was official audit firm for the Enron, it was also involved in unethical behaviors जिसके रिजल्ट में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल स्कैम हुआ है इन टर्म्स ऑफ एनरॉन. फ्रॉड की बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज़ एन इंटेंशनल एक्ट. deceiving others. जब हम दूसरों को धोखा देने की कोशिश करें और misrepresenting facts to take possession of something valuable which the others have. दूसरों के पास कुछ वैल्यूएबल चीज़ है, हम उसकी पोजेशन लेना चाहते हैं, तो उसको लेने के लिए हम दो काम करते हैं. एक, हम धोखा देते हैं. दूसरा, हम मिस रिप्रेजेंट करते हैं फैक्ट्स को, ताकि उसे पता चले अच्छा यार ये तो मामला बहुत अच्छे हैं, ठीक है. और जिसकी वजह में फ्रॉड ऐसे ही होता है ना, आपको बताया जाता है, मैसेज आता है आपको व्हाट्सएप पे कि आपका जनाब मैं बोल नेटवर्क से बात कर रहा हूँ, आपका इतना इनाम निकल आया है. एंड आफ्टर लुकिंग एट दैट व्हाट्सएप मैसेज, what they try to do is they try to deceive you in order to get money out of your pocket. वो आप बताएंगे कि अच्छा जी, उनको कॉल करेंगे, वो कहेंगे कि आप इतने पैसे जमा करवा दें, उसकी टैक्स के पैसे आप वो जमा करवाएंगे, उसके बाद अल्लाह की सपोर्ट दे आर गॉन. दिस इज़ फ्रॉड. एक सेकंड रुकिएगा. ऑलराइट, वेल आई एम बैक. अच्छा, हम फ्रॉड की बात कर रहे थे. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ नेक्स्ट. साइबर स्लैकिंग. ओके, लेट्स टॉक अबाउट साइबर स्लैकिंग. आपको जनाब इंटरनेट मिला हुआ है, कंपनी की तरफ से लैपटॉप मिला है, और आप कंपनी के टाइम में बैठ के अपने पर्सनल चीज़ें, सोशल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. मैं इन्फोटेक में था, तो वहाँ पे मैं देखता था ये आईटी वाले जितने लोग हैं ना, ये कंपनी के लैपटॉप कंप्यूटर्स पे बैठ के अगली जॉब्स के लिए रोज़ी डॉट पी के पे लगे होते थे. टकाटक गेम्स खेल रहे हैं आप जनाब अपना बिल पे कर रहे हैं. तो ये सारी साइबर स्लैकिंग है. यूजिंग कंपनीज रिसोर्सेज टू डू थिंग्स विच आर योर पर्सनल, टू डू योर पर्सनल बिजनेस, इसको साइबर स्लैकिंग कहते हैं. इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. using internet during the office hours, work hours, for personal reasons. इसका नाम है साइबर स्लैकिंग. ठीक है. बल्कि टू योर सरप्राइज़ व्हेन आई क्विट माई जॉब, तो मेरा जो बॉस था, एक सेकंड चलें, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ये बात आगे से रिलेटेड है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. तो वो कहते हैं जी, एग्जाम्पल्स इंक्लूड यूजिंग सोशल मीडिया, सेंडिंग पर्सनल मेल्स, डूइंग पर्सनल सर्चेस एंड थिंग्स लाइक. ख़वातीन बैठ के
अपने लोशन सर्च कर रही हो, मेकअप की चीज़ें सर्च कर रही हो, ये सारा कुछ साइबर स्लैकिंग में आता है। ये समझा जाता है साइबर स्लैकिंग, द कॉस्ट ऑफ साइबर स्लैकिंग इज़ लॉस्ट एनर्जी एंड टाइम ऑफ द एम्प्लॉयज़। कि एम्प्लॉई जब साइबर स्लैकिंग कर रहा है तो उस वक्त में कंपनी का काम भी तो कर सकता था ना, सिंस ही इज़ नॉट वर्किंग द कंपनीज बिजनेस, तो एक्चुअली एंडेड अप लूजिंग द एनर्जी एंड टाइम which is actually owned by the organization, because organization is paying him for the time given to the organization. लेकिन इसका एक अल्टरनेट आर्गुमेंट भी है मेरे दोस्तों, वो ये है कि व्हेन अगर आपको सिर्फ काम ही काम में फोकस करवाया जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट टायर्ड वेरी फास्ट, वेरी सून. सो वन ऑफ द इफेक्टिव वेज टू ओवरकम दिस इज़ कि आपको फ्री फ्लोट कर दिया जाए कि ओके यार, इट्स ओके, यू कैन यूज़ योर सोशल नेटवर्क एज वेल. तो वो आप ज़रा फ्रेश रहेंगे, आप काम करते रहेंगे. लेकिन इसका भी एक एंटी आर्गूमेंट है. द प्रॉब्लम इज़ दैट व्हेन यू विल बी सेट फ्री टू यूज़ सोशल नेटवर्क इन योर ऑफिस आवर्स, और वहाँ पे आपका शरीका, फुप्पो की बेटी है, चाचू का बेटा है, वटेवर, उसने एक पोस्ट लगाई है, आपने वो पोस्ट लगाई, देखिए आपका मूड ख़राब हो गया कि यार ही इज़ हैविंग सो मच इन हिज लाइफ, लुक ही इज़ हैविंग ब्यूटिफुल टाइम एट द मैकडोनल्ड्स. या जिसके लिए भी देखें, पोस्ट सोशल मीडिया पे करने का क्या मकसद होता है? व्हेन यू पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, बाय द टाइम यू क्लिक ऑन द पोस्ट बटन, साथ ही आप कहते हैं कि फलाना, जमीला, सलीना, फलाना, ये सारे सड़ के सुहा हो जाएंगे, फलां को इसने देखनी आई है. जब आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं तो व्हाट यू एक्चुअली दैट स्टेटस इज़ एम्ड फॉर पीपल, कि वो देखें और सड़ जाएं, बस मेरी कोई सक्सेस देख के मैंने जो भी किया, राइट. तो इसका एक नुकसान ये भी है कि जब आप ये सोशल नेटवर्क फॉर इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इस वक्त के दौरान आपकी कोई पोस्ट से नज़र गुजर गई फैमिली रिलेटेड, जिसमें आप किसी से भी आपकी लगती है, उसकी पोस्ट थी, आपका सारा दिन ख़राब मूड गुजरेगा, और इस ख़राब मूड का इम्पेक्ट विल बी ऑन द वर्क यू आर गोइंग टू डू गाइस. तो इस वजह से इन माई हम्बल ओपिनियन, ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पर्सनल सोशल नेटवर्क को यूज़ नहीं करना चाहिए. और ऑर्गेनाइजेशंस ने बल्कि इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया हुआ है. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन विच आई नो ऑफ, वहाँ पे आप सोशल नेटवर्क एक्सेस ही नहीं कर सकते. तो वो VPN इंस्टॉल करके फिर आप शायद चला सकते हैं, वैसे नहीं वो चल सकता. इवन UCP के अंदर वी आर नॉट अलाउड टू एक्सेस यूट्यूब, वी आर नॉट अलाउड टू एक्सेस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, यानी हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली आर डूइंग दैट. ये जो मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं वर्क प्लेस सर्वेलेंस. कैमरे लगा देना टू मेक श्योर कि जनाब एम्प्लॉयज़ कहीं पे पर्सनल यानी क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ईमेल्स. अच्छा, मैं आपको इन्फोटेक की एक बात बता रहा था कि मैं ये सेंटेंस पूरा कर, हाँ, मैं आपको इन्फोटेक की बात बता रहा था कि व्हेन आई वाज इन इन्फोटेक, तो जब मैंने क्विट किया फ्रॉम द कंपनी, तो उन्होंने मुझे ईमेल्स निकाल के दिखाई. उन्होंने कहा ये फ़लाँ ईमेल फ़लाँ टाइम आप. मैं हैरान रह गया कि वो ईमेल्स मैंने पर्सनली सेंड किए हैं, बट दे हैड एक्सेस टू माई मेल बॉक्स, दे हैड एक्सेस टू माई पर्सनल फोल्डर. उन्होंने कहा आपने पर्सनल फोल्डर में CV भी रखी हुई थी, वाई, एंड थिंग्स लाइक दैट. आई वॉज अमेज्ड. तो एक्चुअली देखो, इस सब का नुकसान क्या हो रहा है? इस सब का नुकसान हो रहा है दैट आई or employee is losing his or her privacy. तो privacy is the cost of all this. कि जब हम misbehaviors में involve होंगे, organizations उनको overcome करने के लिए फिर हमारी privacy को invade करेंगे employee की. Let's move on. Theft ही था. Yes, theft. Okay, only one left. Let's quickly go over it. चोरी का चीज़ें उठा के ले आना घर. आप
ने वो स्कूल में यू गाइस डिड दोज एक्सपेरिमेंट्स जिसमें प्रिज्म होता था 7 रंग वाला, हमने एक्सपेरिमेंट होता देखा, हमने कहा यार ये अच्छा है, धूप में रखो 7 रंग निकालता है, इसको तो मैं घर लेके जाऊँ, जेब में डाल के घर जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे. On the serious side, theft is very common across the organization. डब्बे उठा लेना टिशू के, यार घर में टिशू ख़त्म हुआ है, ठीक है, पेन उठा के ले आना, सही है, ये सारा कुछ थेफ्ट में आता है. कोई डाटा केबल है वो नहीं मिल रही, वो ऑफिस से उठा के ले आना, सही. इसकी आसान सी डेफिनेशन ये है, टेकिंग और कंज्यूमिंग और ट्रांसफरिंग goods owned by the organization. ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिएगा कि थेफ्ट सिर्फ चीज़ों का नहीं होता, थेफ्ट कैन बी ऑफ इनटेंजिबल प्रॉपर्टी एज वेल. इनटेंजिबल प्रॉपर्टी समझते हैं ना, वो जो था स्नोडन, जिसने अमेरिका की इंटेलिजेंस से डेटा निकाल के विकीलीक्स पे लीक किया था. एडवर्ड स्नोडन था आई गेस, उस पर स्नोडन पे मूवी भी बनी है. उसने क्या चीज़ थेफ्ट की? उसने डेटा थेफ्ट किया था, उसने डेटा निकाला था. सो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कैन बी थेफ्ट एज वेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं. हैविंग सेड दैट, theft of the data of or information is increasingly of the greater concern. वो जो मैंने आपको एग्जांपल सुनाई, मेरे एम्प्लॉई ने वो कोल्ड ड्रिंक उठा के लेके जा रहा था, वो भी एक्चुअली थेफ्ट ही था ना. उसने कहा यार घर में बोतलें ख़त्म हुई हैं, ईद नज़दीक है, चलो बोतलें तो मैं लेके जाऊँ घर में. इट इज़ सैबोटाज. सैबोटाज मीन्स, मैं आपको एक एग्जांपल कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको बात की समझ आ जाएगी क्या होता है. देयर वॉज एन एम्प्लॉई हु वाज वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी. उस एम्प्लॉई एक केस में वो इन्वॉल्व हुआ, कंपनी ने उसको निकाल दिया. उस एम्प्लॉई के पास एक्सेस थी कंपनी की डेटा की. उस एम्प्लॉई ने घर बैठ के कंपनी का सारा डेटा डिलीट कर दिया. ये एक्सट्रीम लेवल पे होता है, इन विच यू एम टू डिस्ट्रॉय और डैमेज equipment or data owned by the company. इसको कहते हैं sabotage, जानबूझ के करना. अच्छा, sabotage कैन इवन बी इन द केस कि आप कंपनी को आप कस्टमर की कॉल ले रहे हैं, यू आर वर्किंग इन अ कॉल सेंटर एंड यू आर मिसगाइडिंग द कस्टमर, यू आर नॉट टेकिंग द कॉल ऑफ द कस्टमर, यू आर हैंगिंग अप ऑन द कस्टमर. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द sabotage. अच्छा, अब दो चीज़ें हमने क्विकली अंडरस्टैंड करनी है और इट विल बी द एंड ऑफ आवर टुडे सेशन. एक चीज़ ये है कि हम मिसबिहेवियर्स के पीछे मोटिव्स क्या होते हैं, और दूसरा हम मिसबिहेवियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं. Motives behind misbehavior. Steal. S is equal to support. घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, लेके जाऊंगा. T stands for thwart. मैं फ़लाँ से jealous हूँ. I will not let him complete this task. उसकी डाटा केबल निकाल दी. A stands for E stands for even the score. उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने इसकी वजह से उसके साथ ऐसा करना है. even the score motive. And finally is A and L, that is approval motive. A से अप्रूवल है और L ये वाला है, अप्रूवल मोटिव. अप्रूवल मीन्स कि दोस्तों ने कहा यार हाँ हमने ऐसे ऐसे कर दिया, तू इतना कर सकता है, तो हम उनकी अप्रूवल के लिए एक पर्टिकुलर मिसबिहेवियर में इंगेज होते हैं, राइट.
उन्होंने कहा हम जनाब कंपनी का शीशा तोड़ आए हैं, तू इतने जगह है, तू कर ही नहीं सकता, डरपोक है, आपने भी जाकर पत्थर मार के तोड़ दिया फॉर द अप्रूवल. सो दीज आर फ्यू ऑफ द मोटिव्स बिहाइंड द मिसबिहेवियर्स. मिसबिहेवियर्स की कॉस्ट क्या है? मिसबिहेवियर की कॉस्ट है लॉस ऑफ प्राइवेसी. आज कंपनीज़ एम्प्लॉय के डेटा में इन्वेट कर रही हैं, बड़ी स्ट्रांगली और बड़ा एक्टिवली इन्वेट कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि एम्प्लॉय का जितना भी डेटा हमारे पास हो, वो किसको कॉल कर रहा है, किसको मैसेज कर रहा है, किसको ईमेल कर रहा है. दे वांट टू गेट होल्ड ऑफ एवरीथिंग. अब आखिर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू ओवरकम. गिव मी अ सेकेंड. हम इस बिहेवियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ. इसको हम ओपन कर लेते हैं. ये आपके सामने आ गया. किधर गया ये? इसको इसको मैं यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ, मेरा ख्याल अब ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. How to overcome misbehaviors. What organizations do to prevent misbehaviors? There are 5 steps they have given. One is lead by examples. There must be role models in the organizations जिनको देख के employees अपने behaviors को regulate करें. 2. Create an ethical climate. 3. Develop a company-wide policy, a zero tolerance policy. 4. Train managers and employees. एंड 5. डेवलप अ क्राइसिस प्लान. अगर मिसबिहेवियर्स हो जाते हैं और आपने उसके बारे में कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं भी बनाया, then what are the ways you can control the damage which is already done. I hope you have read, you are done with this reading. It's very interesting reading. और अगर आपका कोई सवाल है तो you can email me right away. I am available right now on the emails. I'll be more than happy to cater to your questions. और अब से ठीक 10 मिनट्स बाद आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा. आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक विद द सी आर आप सबको लिंक फॉरवर्ड कर देगा. क्लिक ऑन इट. 15 मिनट्स से 20 मिनट्स का क्विज़ होगा, उसमें टाइम मेंशन होगा. आपने नाम रोल नंबर लिखना है, क्विज स्टार्ट कर देना है और 15 से 20 मिनट के बाद वो क्विज़ इनएक्टिव हो जाएगा. अगर आपने वक्त से पहले सबमिट नहीं किया तो सबमिट नहीं होगा. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपने यूज़ किए हैं, आपको पता है हाउ इट वर्क्स. ऑल राइट, thank you very much. I tried this session to be as simple, as learning oriented as possible, but still at the end of the day I'm human, so chances of inabilities or discrepancies are there. Good luck guys, good luck for your quiz. Allah Hafiz.